کو بتائیں نگراں وزیر اعلیٰ کا ڈی جی خان کو ایک اور تحفہ 133 بیڈز پر مشتمل کارڈیالوجی اسپتال کا افتتاح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ مکمل ہونے پر ذات الہی کا شکریہ ادا کیا کہ جو کام شروع ہوتا ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساؤتھ پنجاب کے لیے ڈی جی خان کے ڈویژن کے لیے اس شہر کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، یادگار دن ہے کہ آج آفیشلی ہم اس ہاسپٹل کو انوگریٹ کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو ہم اگر تصویریں دکھائیں، ادھر ابھی انہوں نے دکھائی ہیں، لاسٹ ایئر آج سے پورے سال پہلے وہ تصویریں لگاتے ہیں، ایک سال پہلے اس بلڈنگ کی جو حالت تھی وہ بالکل یہ دیکھنے والی ہے، بالکل گرے سٹرکچر تھا خالی، اور ناممکن سی چیز تھی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، سی این ڈبلیو نے، آئی ڈیپ نے اور پوری ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو ایک سال کے اندر کمپلیٹ کیا۔ جو مشکل کام تھا، 133 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے، اور ابھی جیسے مجھے بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سے بھی لوگ بہت زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اپنا علاج کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً 5 بلین پلس 5.5 بلین اس کی لاگت آئی ہے۔ کئی سال پہلے یہ شروع ہوا تھا، لیکن جو بھی یہ کام ہوتا ہے اس کو ختم ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج ختم ہو گیا ہے، اور اس پورے شہر کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم 3 سڑکیں ہیں ان کو بھی آج انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک ڈی جی خان میں ہے، ایک راجن پور میں، ایک مظفر گڑھ میں ہے۔ تقریباً یہ 137 بڑی سڑکیں ہیں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ ٹو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جو ہم نے پک کی تھیں اور جو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ٹریولنگ ہے لوگوں کی وہ آسان ہو جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے علاقے کی مین روڈ جو ہائی ویز ہیں وہ ٹوٹی ہوتی تھیں یا بنی بھی نہیں ہوتی تھی، کنسٹرکشن کا کام کئی سال سے جاری تھا۔ وہ اس پوری ٹیم نے، سی این ڈبلیو کی ٹیم نے، سی ایس نے، ان ساروں نے مل کے بہت محنت کے ساتھ ان سڑکوں کو کمپلیٹ کرایا۔ ایک سڑک مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پچھلے 30 سال سے کبھی تھوڑا سا پورشن بنتا تھا، پھر رہ جاتا تھا، پھر بنتا تھا، رہ جاتا تھا۔ الحمدللہ وہ سڑک بھی اگلے تھوڑے دنوں میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی ہائی ویز جو ہیں ہماری، چاہے وہ گجرانوالہ ایکسپریس وے ہے، چاہے SL3 ہے، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس پوری ٹیم جس نے یہ کام کیا اس کے اوپر، اس کے بعد یہاں کے ڈاکٹرز، خاص طور پہ ان کے لیے اب زیادہ امتحان ہے کہ اتنی اچھی فیسلٹی کو مینٹین رکھنا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ غریب آدمی کا جو علاج جو اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا اس علاقے میں ہونا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا ڈی جی خان کو ایک اور تحفہ 133 بیڈز پر مشتمل کارڈیالوجی اسپتال کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ مکمل ہونے پر ذات الہی کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ جو کام شروع ہوتا ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعلیٰ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے ڈی جی خان کو ایک اور تحفہ ہے 133 بیڈز پر مشتمل کارڈیالوجی اسپتال کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ مکمل ہونے پر ذات الہی کا شکریہ ادا کیا۔ سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے جواب کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے جواب کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ سائفر کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
और अब आपको बताएंगे कोटद्दू के N180 से एक बड़ी कामयाबी सामने आई। मोजामनहा, लद्दा, लंगर समेत मुतादिद इलाकों से बड़ी बरादरियों का इकट्ठ। मलिक रजा रब्बानी खैर का इस्तकबाल करते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान किया। रजा रब्बानी खैर का कहना था कि बढ़ता हुआ बरादरियों का रुझान मेरे लिए काबिल रश्क है। इंशाअल्लाह मुंतखब होकर पहले से ज्यादा तरक्याती मंसूबे लाएंगे। आपको बता रहे हैं कोटद्दू के N180 से एक बड़ी कामयाबी सामने। मोजामनहा, लद्दा, लंगर समेत मुतादिद इलाकों से बड़ी बरादरियों का इकट्ठ। मलिक रजा रब्बानी खैर का इस्तकबाल करते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान। रजा रब्बानी खैर का कहना था कि बढ़ता हुआ बरादरियों का रुझान मेरे लिए काबिल रश्क है। इंशाअल्लाह मुंतखब होकर पहले से ज्यादा तरक्याती मंसूबे लाएंगे। बहावलपुर कॉलेज स्टाफ की इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिरी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने 17 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। कॉलेज स्टाफ ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे। गवर्नमेंट सादिक एडजर्टेंट कॉलेज से 8 अफसरान गैर हाजिर रहे। सादिक अब्बास ग्रेजुएट कॉलेज से 3, दीगर से 6 अफसरान गैर हाजिर। ट्रेनिंग से गैर हाजिर स्टाफ में 6 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 2 दिन ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे अफसरान से जवाब तलब। जवाब जमा न करवाने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर कॉलेज स्टाफ की इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिरी पर डायरेक्टर कॉलेजेस ने 17 असिस्टेंट प्रोफेसर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। कॉलेज स्टाफ ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे और गवर्नमेंट सादिक एडजर्टेंट कॉलेज से 8 अफसरान गैर हाजिर रहे, जबकि सादिक अब्बासी ग्रेजुएट कॉलेज से 3 और दीगर से 6 अफसरान गैर हाजिर हुए। ट्रेनिंग से गैर हाजिर स्टाफ में 6 खवातीन भी शामिल हैं। 2 दिन ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे अफसरान से जवाब तलब कर लिया गया है। जवाब जमा न करवाने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर कॉलेज स्टाफ की इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिरी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने 17 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए। कॉलेज स्टाफ ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे। गवर्नमेंट सादिक एडजर्टेंट कॉलेज से 8 अफसरान गैर हाजिर रहे। सादिक अब्बास ग्रेजुएट कॉलेज से 3, दीगर से 6 अफसरान गैर हाजिर। ट्रेनिंग से गैर हाजिर स्टाफ में 6 खवातीन भी शामिल। 2 दिन ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहे अफसरान से जवाब तलब। जवाब जमा न करवाने पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। 2 रोज़ा ट्रेनिंग थी और उसमें ये जो स्टाफ है कॉलेजेस का ये गैर हाजिर रहा, जिस पर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे जवाब तलबी की गई है। 2 दिनों में जवाब जमा करवाना है, नहीं तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है डायरेक्टर कॉलेजेस का। और साथ में ये भी शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि ये अफसरान जो हैं मुतलका जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, ये इलेक्शन प्रोसेस में खलल का बायस बन रहे हैं, चूंकि ट्रेनिंग जो थी वो 2 रोज़ा थी और 2 रोज ये एब्सेंट रहे हैं। इनमें तकरीबन 8 जो लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका ताल्लुक गवर्नमेंट सादिक एडजर्टेंट कॉलेज बहावलपुर से है, जिनमें 3 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सादिक अब्बास कॉलेज डेरा नवाब से हैं और 6 दीगर कॉलेज से ताल्लुक है। इनमें से 6 खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल हैं। उनसे जवाब तलब किया गया है और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वो भी इनकी जो खिलाफ कार्रवाई है उसमें उसको इस हवाले से नोटिस जारी करें और इस हवाले से जो तमाम प्रोसेस है इलेक्शन का उसमें ये खलल का बायस बन रहे थे। जवाब जो है इनको 2 रोज में देने का पाबंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में आपको बताएंगे मुल्तान में कमिश्नर आमिर खट्टक के ज़र सदारत जायजा इजलास। कमिश्नर आमिर खट्टक का इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहे हैं। आमिर खट्टक पोलिंग स्टेशन का इंतखाब, अमले की तैनाती के लिए इकदाम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन अखराजात और तशकीरी मुहिम की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान कमिश्नर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कमिश्नर आमिर खट्टक का इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म है। शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल न्याजी, अपडेट कीजिएगा। तैयारियों के हवाले से आज कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता इखलाक हैं इलेक्शन के हवाले से उस पर कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी गई तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से। और इस हवाले से इस मौका पर आमिर खट्टक जो कमिश्नर मुल्तान है उन्होंने अहकाम जारी किए कि किसी भी सूरत जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और
तमाम तर उम्मीदवारों को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। इस हवाले से तमाम तर रिटर्निंग अफसरान को भी हिदायत जारी की गई हैं। जबकि कमिश्नर मुल्तान का ये भी कहना था कि पुरअमन इलेक्शन और साफ और शफाफ इलेक्शन और माहौल फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस हवाले से इस जिम्मेदारी को हर सूरत निभाया जाएगा। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो कमिश्नर मुल्तान है उनको इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और इस बारे में बताया गया कि जिले की महकमे जो है वो जनरल इलेक्शन इंतजाम के लिए हतमी शक्ल इसको काम को दे चुके हैं। उसके साथ साथ तमाम तर डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे और जो शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको एक बेहतर माहौल फराहम करने के लिए कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन अखराजात के लिए तशरीही मुहिम के लिए भी इस हवाले से कवानीन बनाए गए हैं। 40 लाख खर्चा, MNA का 20 लाख खर्चा, उस हवाले से जो MP की सीट है उसके लिए है। तो उम्मीदवारों को कहा गया कि जो इलेक्शन अखराजात हैं वो ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक ही किए जाए। उस हवाले से अलग बैंक अकाउंट भी बनाए जाए। जबकि माहौल को पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज भी तैनात होंगी जो इस हवाले से पुलिस स्टेशन और उसके साथ साथ जो इलेक्शन के हवाले से माहौल होगा उसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी करेंगे। जबकि बिलाल नियाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब का मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट निश्तर 2 तकमील के मराहिल में दाखिल। निश्तर 2 को फंक्शनल करने के लिए इक़दामात मुकम्मल, इफ्तिताह की तैयारियों का आगाज। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब जल्द निश्तर 2 मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर का निश्तर 2 का दौरा, अस्पताल का जायजा भी लिया। मंसूबा 10 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। आपको बता रहे हैं निश्तर 2 अस्पताल की तामीर से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। निश्तर 2 की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर ऑफिस से मुकम्मल मुआवनत फराहम की गई है। अपडेट करें आपको यहाँ पर अहम खबर से। जनूबी पंजाब का मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट निश्तर 2 तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। निश्तर 2 को फंक्शनल करने के इक़दामात मुकम्मल किए गए हैं। इफ्तिताह की तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब जल्द निश्तर 2 मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर का निश्तर 2 का दौरा, अस्पताल का जायजा लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब का मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट निश्तर 2 तकमील के मराहिल में दाखिल। निश्तर 2 को फंक्शनल करने के इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इफ्तिताह की तैयारियों का आगाज भी किया जा रहा है। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब जल्द निश्तर 2 मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। अब आपको बताएंगे मुल्तान CPO ने पुलिस मुलाजमीन की अपीलें सुनने के लिए अर्दल रूम का इनेकाद किया है। अर्दल रूम में 10 पुलिस मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की गई है। CPO ने 5 मुलाजमीन की सजाओं में कमी कर दी है, जबकि CPO ने 2 मुलाजमीन की अपीलों को रिजेक्ट कर दिया है। CPO की अफसरान को मेहनत और ईमानदारी से फराइज अदा करने की हिदायत। आपको अपडेट करें, मुल्तान CPO ने पुलिस मुलाजमीन की अपीलें सुनने के लिए अर्दल रूम का इनेकाद किया। अर्दल रूम में 10 पुलिस मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की गई, जबकि CPO ने 5 मुलाजमीन की सजाओं में कमी कर दी। CPO ने 2 मुलाजमीन की अपीलें रिजेक्ट की। CPO की अफसरान को मेहनत और ईमानदारी से फराइज अदा करने की हिदायत। रहमिया खान में गैस नायाब हो चुकी है। 24 घंटों में कुछ देर के लिए गैस आती है। गैस न होने से शहरी होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर है। गैस आती नहीं है, लेकिन कई गुना महंगे बिल आ जाते हैं। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। में गैस की लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर हो चुका है और इंतजामिया भी इसको कंट्रोल करने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। सर्दियां ज्यों ज्यों इसमें इजाफा होता जा रहा है तो इसके साथ साथ सुई गैस की जो लोड शेडिंग है उसमें भी इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जो कारोबारी तबका है वो बल्कि इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन समेत तमाम शहरियों को जो है इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे से मौजूद उनसे जानते हैं। बताइएगा, गैस की जो लोड शेडिंग है वो 8-8, 10-10 घंटों तक भी चली जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो उसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर बहुत परेशानी। देखिए, मैं होटल पे रोटी लेने आया हूँ। हम सुबह का नाश्ता भी, बच्चे हमारे बेचारे भूखे जाते हैं स्कूल में, वापस आते हैं तब भी गैस नहीं होती, ना सुबह के टाइम गैस होती है। गैस की इतनी लोड शेडिंग है हम आपको बता नहीं सकते। बिल अभी हमारे आए हुए हैं हज़ारों के हिसाब से, गैस बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा, मैं आपके तवज्जो से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो हीट गनें लगाई गई हैं, जो मशीनें लगाई गई हैं घरों में, ये जब थोड़ी देर के लिए बिजली बंद होती है तो गैस फिर बहाल हो जाती है। जो हीट गनों का काम है ना, ये लोड शेडिंग के साथ साथ इसका भी सर खात्मा किया जाए, इसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाए, हमें जो है लोड शेडिंग से बचाया जाए। बिल हमारे बहुत महंगे आए हैं, बच्चे अब हमारे भूखे बैठे हैं। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम है, अब मैं रोटी लेने के लिए होटल पे आया हूँ। सुबह नाश्ता भी यहीं से लेकर गया हूँ मैं। बिल्कुल, ये वो शहरी जो बताते हैं कि घर में जो है वो गैस के चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके बाद होटलों की तरफ ये आते हैं और नशद मुश्किलात का सामना। इनका ही मुतालबा आला हुकाम से कि सुई गैस की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए।
कार्निवाल में इंसानी जिंदगियों को बचाने वाली अद्वियात हुई नापैद। इंसुलिन और दिल के मरीजों की अद्वियात शॉर्ट हो चुकी है। अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे मलिक उस्मान। बिल्कुल इंसानी जिंदगी को बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया, जिसके बाद जो है शहरी खासे जो है परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जो है इधर शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी आप ही बताएं, यहाँ पर अद्वियात लेने के लिए पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे? पहले मतलब है इंसुलिन हमें मिलती थी तकरीबन 800 रुपए की, अभी एक तो कीमत डबल हो गई है, 1500 कुछ की बता रही है। फिर दूसरी बात है कि हमें जगह जगह मतलब तलाश करनी पड़ती है, मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती है। कीमत भी डबल है, मिलती भी मुश्किल से है। हमें मतलब दवाइयों में ना मुश्किलात का सामना है। और भी जो है कस्टमर मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। जी भाई आप बताएं, मेडिसिन लेने के लिए आए हैं तो क्या किन परेशानी का सामना करना? बस महंगाई है और क्या है, इस बात की टेंशन होती है सबको, लेने के लिए परेशानी। जाहिर है गरीब बंदा कहाँ से दवाई अफोर्ड करेगा। आज बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ जो है दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप ये बताएं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है तो क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा दुकानदार ये परेशानी है कि बहस मुबाहिजा बहुत ज्यादा होता है। पहले ये था कि इंसुलिन 800 रुपए की मिलती थी, अब 1560 रुपए की, जो कि पाकिस्तान में इंतहाई शॉर्टेज है। एक महीने में तकरीबन 1 से 2 वाइल दे देते हैं, जबकि हमारा 15 से 20 वाइलों का खर्चा है। अब हार्ट की दवाइयों के भी ऐसे ही है। हार्ट की दवाइयां देख ले, कोई भी है वो इंतहाई ऊपर ले गए हैं। पहले सस्ती सी होती थी, लोग बड़े मतलब अफोर्ड कर लेते थे मेडिसिन, अब मेडिसिन उनसे अफोर्ड नहीं होती, बल्कि शॉर्टेज भी है। पाकिस्तान में मेडिसिन ही नहीं है। जी बिल्कुल मेडिसिन की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मलिक उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।